Hello students, welcome to Crack Grade B online learning platform. Today in this video lectures, we will discuss about the pattern of the RBI Grade B Phase 1 exam and analysis of last 3 years papers of RBI Grade B Phase 1 exam, and we'll discuss how to prepare for RBI Grade B Phase 1 exam. As those students who are targeting RBI Grade B 2020, they have already started preparation, and those who are targeting other aspirants who have not started yet, I will advise to start preparation immediately as exam will definitely happen. It may be little delayed, but the exam will surely be conducted by RBI. So I would like advice to all the aspirants who are targeting 2020, don't waste your time and start preparation and watch this video. You will get an idea how to prepare, how to start your preparation for RBI Grade B Phase 1 exam. We will discuss the detailed analysis of last 3 years papers of RBI Grade B Phase 1 exam. And after this, we will discuss this next video. In the next video, we will discuss about the last 3 years paper of ESI, Economics and Social Issue. Later on, we will discuss the finance and management detail analysis, which topics they are targeting every year in ESI, FM, and Phase 1 also. So detailed analysis we will see in the next slides. First, we will discuss about the pattern, Phase 1 examination, Phase 2 examination, interview, 3 stage process it is. So first फेज वन एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का होता है. इसमें जो मिनिमम कट ऑफ एज डिसाइडेड बाय आरबीआई है, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स सिक्योर करते हैं या स्कोर करते हैं, वो फेज 2 एग्जाम दे सकते हैं, फेज 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं. और फेज 2 एग्जाम 300 मार्क्स का होता है, जो फेज 2 एग्जाम में भी मिनिमम कट ऑफ एज it is decided by the RBI based on the vacancies. So जो फेज 2 में मिनिमम कट ऑफ जो डिसाइड आरबीआई करता है, उसके बेस पे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं और इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट होती है वो फेज 2 मार्क्स और इंटरव्यू मार्क्स के बेस पे बनती है. दोज हु विल क्वालिफाई द फेज 2 एग्जामिनेशन and will be able to appear in the interview. The phase 2 examination will be consist of 300 marks. Interview will be of 50 marks. Final merit list will be based on the 300 marks plus 50 marks. Out of 350 marks, you have to secure the minimum cutoff as decided by RBI to get shortlisted. So, if you have good marks in the phase 2 examination, then there are probability to get selected. Most of the students focus on phase 2 examination from starting of the preparation. Actually, there is a gap, very few days you are given for phase 1 between phase 1 and phase 2 examination, so you will not get much time. At the time only you will get time to revise the things only, so time is very less. So most of the students start preparation from the very starting, as phase 2 examination decide your selection also. So 300 marks play very big role in your selection. If you are able to score good marks in phase 2 examination, then you can easily, then there are chances of your selection. So in detail we will discuss the pattern of the RBI Academy phase 1 examination. There will be 4 sections: general awareness, reasoning, quantitative aptitude, English language. 80 questions from general awareness, reasoning 60 questions, 30 questions from quantitative aptitude, and 30 questions for English language. Same pattern of marks, 80, 60, 30, 30. And from 2019, RBI have introduced the sectional timing. Sectional timing is given 25 minutes, 45 minutes for reasoning, all other sections 25 minutes. So you have to secure the sectional cutoff also as decided by RBI. So RBI Grade B phase 2 examination there will be 3 papers. First will be the economics and social issue. Second will be the English writing skills. You have to type on the computer using the keyboard. So these both papers are conducted in one shift, and paper 3 finance and management is conducted in second shift after a gap of 2 hours approximately. So this paper will be back to back, these 2 papers. First economics and social issue will be there for 1.5 hour. After that, immediately after that, English paper will be started. So
There will be 65 questions in ESI paper, 35 questions for 2 marks. Paragraph based questions are being asked, 30 questions for 1 marks each. And time is 1.5 hour. English, you have to type using the keyboard. One essay will be, you have to write out of 5 essay topics. Mostly current topics are being asked in the exam. And one time 200 was essay was there. Most after that 300 was essay you have to write. Comprehension based 5 questions and 1 precise writing. So these are the questions being asked in the English paper. One essay you have to write, and comprehension based questions and 1 precise writing. Similarly, financial management, there will be 65 questions, 35 questions will be paragraph based, 2 marks each, and 30 questions are very objective type, single marks. So time is the same, 1.5 hours, 100 marks. There is no sectional cutoff in these 3 papers for phase 2 examination. You have to secure minimum marks out of 300 as decided by RBI. So we will discuss the cutoffs of last 4 years and the sectional cutoff also. As we saw in the 2016, 18, 19, sectional cutoff remains same, the minimum 25% marks. For general category we are discussing. For the reserve categories, the sectional cutoff are less than the general category. You can see this sectional cutoff or the overall cutoff from the RBI Grade B RBI website. First is general awareness. You can see the minimum sectional cutoff marks in 2016, 18, 19 is 25%. Reasoning also 25%. English language is also 25%. Quantitative aptitude is also 25%. Only in the sectional cutoff marks in 2017 was less than 25%. The reason was that in 2017 the paper was much difficult as compared to 2016, 18, 19. And कट ऑफ मार्क्स टोटल कट ऑफ मार्क्स अगर हम देखते हैं 2016 में तो 98.50 है। 2017 में पेपर का लेवल बहुत ही डिफिकल्ट था तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स 78 था और 2018 में जो कट ऑफ मार्क्स है वो है 105.75 एंड 2019 में एकदम से इंक्रीज हुआ है 122। रीजन क्या था कि यहाँ पर 2019 में जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन रेशो है एज कम्पेयर टू द वैकेंसीज जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो डिक्रीज किया गया था, अप्रोक्सीमेट 1:13 कर दिया गया था यहाँ पे, जबकि 2018 में अप्रोक्सीमेट 1:22 था विद रिस्पेक्ट टू 1 सीट जो फेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। तो ये एक रीजन था कि यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स है वो बढ़ गए थे। और दूसरा ये है कि अभी पैटर्न सेम रहने की संभावना है, 2020 में भी यही रेशो आरबीआई कंटिन्यू कर सकता है, इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कंपटीशन काफ़ी है एज number of students are preparing for this exam and even UPSC students also prepare for this exam, so competition is very tough. So if you are able to secure good marks in phase 1 then you are qualified for phase 2. Target phase 1 preparation also from very beginning. Actually you have to secure at least 125, you have to target 125 plus to be safer side this year also, and then it will depend on the vacancies also. So I will advise to start preparation from very beginning for phase 1 also. Keep practicing, attempt mock test for practice. So in 2017 cutoff was less due to the level of paper difficulty was higher as compared to the 2016, 18, 19 and 19. That was the reason that cutoff was low. 2019 they have reduced the ratio as compared to the vacancy. Against one vacancy they have selected 13 students approximate for phase 2. In 2018 for one vacancy they have selected 22 students for phase 2. That was the reason. So sectional cutoff you can easily predict that
2016, 18, 19, the sectional cutoff is same, so 25% marks. So we can assume that in 2020, sectional cutoff will remain same. So now we will discuss in the detail RBI Grade 3 Phase 1 examination last 3-year analysis. So first we will discuss general awareness. 2017, 18, 19. If we talk about the general awareness for the 2017, 30 question from banking awareness, they will be combination of static and current. 40 direct current affairs. It was a mixture of sports, defense, science, other news that are being asked in the general banking exams. We can assume from here, we can assume that 40 plus 30, 70 questions are directly based from the current affairs and banking awareness. Similarly, in each year, you can see that 670 questions are being asked from the current affair and banking awareness. Static GK are being asked very less, so 10 questions mostly. Every year 10 questions were asked from the static GK. तो ये तीनों साल का अगर हम एनालिसिस करें जनरल अवेयरनेस का, तो 70 क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर से ही पूछे गए हैं. स्टैटिक जीके है वो पूछा गया है, तो वो सिर्फ 10 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट है. ये हमने मेमोरी बेस पेपर के बेस पे एनालिसिस किया है. ये तो कंफर्म है कि 70 क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें कुछ स्टैटिक पार्ट होता है बैंकिंग अवेयरनेस का, वो भी करंट अफेयर्स से ही करंट अफेयर्स से ही मतलब कहीं ना कहीं लिंक होता है. तो 70 मार्क्स हम मतलब अज्यूम करके चल सकते हैं कि 70 मार्क्स है वो करंट अफेयर के बेस पे पूछे जाते हैं. तो इसलिए हमें करंट अफेयर को फोकस करना है ज़्यादा. अगर आरबीआई गेट भी फेज 1 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो फेज 1 में वही पूछा जाता है. फेज 2 में थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसलिए 70 मार्क्स और ये 80 मार्क्स हैं जो करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के आते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में. और फेज 2 के लिए जो मिनिमम कट ऑफ डिसाइड किया जाता है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कट ऑफ जैसा कि आरबीआई ने स्टूडेंट्स का रेशियो है जो फेज 2 के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द वैकेंसी, ईच नंबर ऑफ वैकेंसी, वो रिड्यूस कर दिया है. तो आपको ज्यादा स्कोर के लिए टारगेट करना होगा, तो आप ज्यादा स्कोर के लिए टारगेट करना है तो करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना होगा. जनरल अवेयरनेस में ज्यादा मार्क्स लेने होंगे क्योंकि 80 मार्क्स है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखा है हमने 60 प्लस स्टूडेंट्स 60 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर लेते हैं, और अच्छा स्कोरिंग सेक्शन भी है. दूसरा टाइम 25 मिनट्स है, मोर देन एनफ है फॉर 80 क्वेश्चंस. सो इसके लिए जो आरबीआई की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा कि आप जनरल अवेयर सेक्शन को सीरियस तरीके से प्रिपेयर करिए. क्विज, और इसको याद रखने का एक सबसे आसान तरीका यही रहता है कि आप बार बार क्विज अटेम्प्ट करिए, ताकि आपको याद, जो आप गलतियां करते हैं वो आप इम्प्रूव कर पाएंगे. जो मतलब क्वेश्चंस आप सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो क्विज से याद ज्यादा रहता है. ये एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, जितने ज्यादा क्विज अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा करंट अफेयर आपको याद रहेगा. तो आई विल एडवाइज to practice more quiz for the current affairs. It will enable you to memorize more questions or more content. So focus on the quiz for this. And for this preparation, I will advise that general awareness, any banking website that current affairs related to the banking awareness and normal current affair for the banking exams, you can cover any banking website. You can refer to website at least, so that some data is not missing on another website. So the mostly students, those who are preparing for the RBI Guide, we focus on these current affairs, mainly read from the one is Affairs Cloud. Second is Adda 247. Many students GK today are filling. But for the banking exam for RBI Grade B Phase 1 exam, I will advise you to prepare from the Affairs Cloud, or our monthly PDF is also enough. We are saying it is available on our website without any charge. So every month we release.
and the last 3 months current affair is enough. Last 3 months. You can check the previous year questions. It is easily available on Google. Then you can check the history. That maximum questions were asked from the last 2 months before the exam date. अब एग्जाम डेट के लास्ट 3 महीने पहले की करंट अफेयर आपको पढ़नी है। तो आप अगर आप पैटर्न देखेंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे जो इस एग्जाम में आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 एग्जाम में जो जनरल अवेयरनेस में पूछे गए हैं, वो 2 महीने के लास्ट 2 मंथ्स के ही क्वेश्चंस मोस्टली होते हैं। कोई 4-5 क्वेश्चंस होंगे वो 2 महीने से ज्यादा के मतलब लास्ट 3 मंथ्स में कवर हो जाते हैं। तो मैक्सिमम सेफर साइड अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो मैक्सिमम 3 मंथ्स का जो करंट अफेयर है आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 एग्जाम के लिए एनफ है। आपको बहुत जगह देखेंगे कि कोई 6 मंथ के लिए सजेस्ट करेगा, कोई 7 मंथ के लिए, कोई 5 मंथ्स के लिए। बट आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 के लिए अगर आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, आप पुराने क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस देखिए 2017 के, 18 के, 19 के, फिर उनसे गूगल में सर्च करें कि वो किस डेट का था, एग्जाम कब हुआ है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि लास्ट 2 मंथ से ज्यादा कवर जनरल अवेयरनेस कवर पढ़ने के लिए, मतलब करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 3 मंथ्स आप सेफर साइड है रहना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 3 मंथ्स का करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए अफेयर्स क्लाउड का जो पॉकेट पीडीएफ होता है वो काफी रहता है, या हमारा मंथली पीडीएफ भी हम भी इशू करते हैं इसके फेज 1 के एग्जाम के लिए, वो भी काफी रहता है। तो मैं दोनों को एडवाइस करूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ कंटेंट हमारी पीडीएफ में हम कवर ना कर पाए तो वो दूसरी वेबसाइट से कवर हो जाता है, तो आपको क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा क्विज अटेम्प्ट करिए। अगर आपको करंट अफेयर्स को याद रखना है तो क्विज अटेम्प्ट करने से ज्यादा आप याद रख पाएंगे और क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम होगी आपके एग्जाम में। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम का, 80 मार्क्स है, तो आप इसमें ज्यादा स्कोर करके अपने चांस हैं जो फेज 2 में सिलेक्शन के वो ज्यादा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में देखेंगे तो अब 3 साल का पैटर्न एनालिटिकल रीजनिंग होती है हमारी, जिसमें पजल्स, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट, इनकी बात करें तो, या ब्लड रिलेशन की बात करें, ये 20 to 25 मार्क्स हर साल पूछा गया है। तो 20 to 25 क्वेश्चन हैं, हर साल पूछा गया है। 20 to पजल्स 25 क्वेश्चन, पजल 15 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 4 क्वेश्चन, 3 साल में ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आया है। तो कुछ 60 क्वेश्चन होते हैं, तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये आसान नहीं है कि रीजनिंग के वो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, 60 क्वेश्चन कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो पजल्स में वे बहुत ही फास्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वो पजल्स में इतने फास्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो उनको बाकी के टॉपिक्स हैं उन्हें फोकस करना चाहिए, क्योंकि 60 क्वेश्चन हैं, बहुत हैं क्वेश्चन। आप बाकी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे तो काफी है। अगर आप एक्यूरेसी अच्छी है तो बाकी क्वेश्चन, पजल को छोड़ के भी बाकी क्वेश्चन करके आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर टाइम लास्ट में बचता है तो आप पजल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पजल में ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा अच्छा नहीं है उनका, या मतलब स्ट्रॉन्ग हैंडल नहीं है इसमें पजल में। तो वो क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं और एक ही पजल में टाइम वेस्ट कर बैठते हैं, और फिर क्या होता है, टोटल जो मिनिमम कट ऑफ है वो नहीं स्कोर कर पाते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कम रहता है इसकी वजह से। और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में वो सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर में हमने देखा था कि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने रीजनिंग में ये मिस्टेक की थी, वो पजल्स अटेम्प्ट करने लग गए थे। और बहुत सारे स्टूडेंट है हर साल ऐसा करते भी हैं कि वो पजल से स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि क्वेश्चन प्रेशर में कई बार क्या होता है कि एग्जाम का प्रेशर होता है आपके ऊपर, टाइम का भी प्रेशर होता है कि आपको सिर्फ 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उसमें कई बार मिस्टेक हो जाती है, और एक मिस्टेक की वजह से क्या होता है, आप उसमें बार बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और वो सोल्व भी नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन भी कम हो जाता है एग्जाम में।
और उससे पूरे एग्जाम की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है और आप अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो रीजनिंग में सिर्फ मिनिमम कट ऑफ की वजह से बाहर हो गए थे, जबकि ओवरऑल कट ऑफ उनका मिनिमम कट ऑफ से ज्यादा स्कोर किया था उन्होंने। बट वो सेक्शनल कट ऑफ है रीजनिंग में नहीं कर पाए थे क्योंकि लास्ट टाइम में, और सबका रीजन यही था कि वो पजल्स में कंफ्यूज हो गए थे या उन्होंने मिस्टेक की कि पजल्स अटेम्प्ट करने लगे और उसमें पजल्स उनसा सोल्व नहीं हुआ और टाइम वेस्ट हो गया था। तो इसलिए बाकी की अगर देखें तो ब्लड रिलेशन इजीली आप कर सकते हैं, इनइक्वलिटी इजी है, इनपुट आउटपुट भी इजी टू मॉडरेट लेवल का पूछा गया है, डाटा सफिशिएंसी है, डायरेक्शंस है, स्लोग्स है, लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क्स का है, लॉजिकल रीजनिंग हर बार पूछा जाता है, इनइक्वलिटी है, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, डाटा कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कि एक शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया था, दूसरे शिफ्ट में स्लोग्स पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको लेटेस्ट पैटर्न है जो आप अगर हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं किसी भी बैंकिंग प्रिपरेशन जो पीओ के एग्जाम के एग्जाम की करा रही है वेबसाइट, वहां से इजीली से आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं और इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है इन क्वेश्चंस को। और बहुत सारे चैनल होते हैं जो यूट्यूब पे वीडियो फ्री में जो लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन पे अवेलेबल कराते हैं, तो आप वहां से भी वीडियो देख के भी लेटेस्ट पैटर्न है उससे अवेयर रह सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट ही प्रैक्टिस करिए ताकि आपको रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस हो कि आप प्रेशर में कैसे अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए एडवाइस करूंगा मैं इस आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और टॉपिक्स यही रहते हैं, हर बार रिपीट होते हैं टॉपिक्स, मतलब इनसे तो क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, जैसे सिलोग्स हैं, डाटा सेक्शंस, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, इनइक्वलिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है। तो ये टॉपिक भी आप अगर आप पजल्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं तो बाकी क्वेश्चन भी अप्रोक्सीमेट 45 क्वेश्चंस हैं, तो 45 क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं। अगर टाइम बचता है तो आप पजल में कर सकते हैं, और जिन लोगों का पजल्स में स्ट्रांग पॉइंट है तो वो उनको मैं एडवाइज नहीं करूंगा कि आप बाकी सेक्शन पे आप पजल पे ही फोकस करिए। पर जो लोग पजल में थोड़ा वीक हैं पजल सोल्व करने में, उनके लिए एडवाइस करूंगा कि आप दूसरे सेक्शन को टारगेट करिए। आई मीन मॉक टेस्ट में भी वैसे ही प्रिपेयर करिए, मतलब वैसे ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए जैसे कि आप रियल फेज 1 के एग्जाम में करेंगे। ना पैटर्न को चेंज मत करिएगा, कंसिस्टेंसी रखिएगा कि आप अगर पजल नहीं कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट में सिर्फ बाकी क्वेश्चंस को ही टारगेट करिएगा, पजल को टारगेट नहीं करिएगा। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि शुरू में पजल्स के अलावा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, फिर अपना पैटर्न चेंज कर लेते हैं, पजल ट्राई करने लग जाते हैं, तो इससे कंसिस्टेंसी खराब होती है, आपकी प्रैक्टिस आपकी प्रिपरेशन पे फर्क पड़ता है। तो इसलिए आप कंसिस्टेंट रहिए। अगर आपका पजल वीक है तो पजल्स को ट्राई मत करिए, बाकी जो है लगभग 40 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन या कभी 35 क्वेश्चन, जैसे इसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप 35 क्वेश्चंस को भी अगर आप एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करते हैं तो वो भी एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसके बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में, या मतलब बहुत सारे गूगल पे या डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे या डिफरेंट इंटरव्यूज में ये बताया गया है कि डीआई का लेवल बहुत टफ होता है, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। डीआई सिर्फ अगर हम बात करें या मतलब क्वांट का, ये बताया गया है कि बहुत ही टफ पूछा जाता है आरबीआई में, जबकि ये बिल्कुल गलत है। 2017 को हम छोड़ दें, 2017 एक एक्सेप्शन था, उसमें काफी टफ पेपर रहा था। बाकी 2016, 18, 19 की बात करें तो बहुत ही बेसिक क्लरिकल लेवल के एग्जाम का, जो आईबीपीएस के क्लरिकल लेवल के एग्जाम के क्वेश्चंस पूछे गए थे। डीआई हमेशा पूछा जाता है, 15 मार्क्स 10 क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे, 17 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर हम 2017 में भी अगर क्वांट डिफिकल्ट था तो उसी तरह से सेक्शनल कट ऑफ 4 मार्क्स ओनली 4 मार्क्स था। 2018 में भी डीआई में 15 क्वेश्चन आए थे, 2019 में वही भी 10 क्वेश्चंस। तो डीआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आते ही हैं। और इजी पैटर्न रहा था, सिंप्लीफिकेशन, सिर्फ कैलकुलेशंस, रेशियो, इस टाइप की आपको सोल्व करना था, डिफिकल्ट नहीं था। मतलब दोनों साल अगर 2018-19 की बात करें तो सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे ये, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, रेशो,
इसका कॉन्सेप्ट लगाना था। मिसिंग नंबर के डीआई मिल जाते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सब अप्लाई करना होता है। तो एक डीआई को, जिनका मैथ थोड़ा वीक है तो वो डीआई को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि डीआई सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 के एग्जाम में डीआई जो मोस्टली पूछे गए हैं वो प्लस माइनस, अगर 2017 को छोड़ दें तो 2018-19 में क्लरिकल लेवल का ही एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज पूछी गई थी, दोनों साल पूछी गई थी, 2019 में भी, 2018 में भी। डाटा सफिशिएंसी जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं लाइक वोट एंड स्ट्रीम है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टाइम वर्क है, पार्टनरशिप, मिक्सचर प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब टॉपिक से बाकी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप, अगर आप ये सारे टॉपिक कवर नहीं कर पा रहे हैं, आपका मैथ वीक है, तो आप डीआई पे फोकस कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज हमेशा पूछे गए हैं, तो इससे भी आप क्या है कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 20 के करीब क्वेश्चन हैं जो डीआई प्लस सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज से पूछे गए हैं। 7.5 मार्क्स को सिक्योर करना है मिनिमम कट ऑफ मार्क्स के लिए। बाकी अगर आपको और अच्छा स्कोर करना है, तो मतलब टोटल कट ऑफ अगर क्लियर करना है, तो आप जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका क्वांट वीक है तो उन पे ज़्यादा मेहनत करिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और क्वांट के लिए आप मिनिमम मार्क्स लेने के लिए उस पर फोकस करिए। इसके लिए सेम आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से ही आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो इसलिए भी आप मॉक टेस्ट ही जब चारों सेक्शन का सेक्शनल टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे ही आपकी प्रैक्टिस होगी। और लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, या अपने डाउट्स के लिए यूट्यूब चैनल है बहुत सारे, जहाँ पर फ्री में वीडियोस मिल जाएंगे आपको, इसलिए आप वहाँ से देख सकते हैं। और मॉक टेस्ट में आप सॉल्यूशन जरूर देखिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद। नेक्स्ट आता है इंग्लिश में। इंग्लिश में हमेशा लेवल थोड़ा मॉडरेट लेवल रहता है इंग्लिश का। 2017 में डिफिकल्ट लेवल था, 2018 में इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं, तो आप मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इजिली सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप, इसके लिए भी मैं यही एडवाइस करूँगा कि प्रैक्टिस करिए, या अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट है तो आपको बेनिफिट मिल सकता है इसमें भी। अगर आप न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, तो आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, तो आपका इंग्लिश का लेवल है थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। और वैसे इसका लेवल बेसिक लेवल ही होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। मतलब आप मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने से इम्प्रूव हो जाएंगे। आप वहाँ पर सॉल्यूशन जरूर देखिए मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने के बाद। तो अगर आप देखेंगे कि इंग्लिश में 10 मार्क्स का रीडिंग कम्प्रिहेंशन आता है, हर साल पूछे जाते हैं। एरर सेंटेंस करेक्शन, मतलब एरर वाला क्वेश्चंस, डबल फिलर्स, क्लोज टेस्ट हर साल आया है। पैरा जम्बल्स, इडियम्स, डबल फिलर्स, ये क्लोज टेस्ट हर बार पूछा गया है। सेंटेंस कंप्लीशन भी पूछा गया है एक बार, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस यूजिंग कनेक्टर्स भी पूछा गया है। तो यही पैटर्न रहता है सभी बैंकिंग एग्जाम्स का। बाकी बैंकिंग एग्जाम्स में भी मतलब क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड आते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके ही अपना परफॉर्मेंस, इसको अपना परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि अभी से जो स्टार्ट कर दिया जिन्होंने प्रिपरेशन, पहले आप फेज 1 का एग्जाम का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिएगा। बट करंट अफेयर्स के लिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि करंट अफेयर्स है वो आप लास्ट 2 मंथ्स का ही करिएगा, मैक्सिमम 3 मंथ्स, अगर आप सेफर साइड रहना चाहते हैं। कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, याद करना, डेटा याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डेटा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्विज अटेम्प्ट करके ही इसको याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा क्विज अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा याद रखने रहने की संभावना है। वैसे ही मॉक टेस्ट जो है, आप कंप्लीट मॉक टेस्ट है वो एग्जाम से पहले ही प्रैक्टिस करिएगा। तब तक आप ये इंडिविजुअल क्विज होते हैं टॉपिक वाइज, तब तक वो प्रैक्टिस करिएगा, टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप एग्जाम में भी, क्योंकि आपको टाइम लिमिट होगी, उस टाइम लिमिट के अंदर ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। रियल एग्जाम समझ के प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे नहीं कि मतलब एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं कि
टाइम ज़्यादा हो रहा है या आप क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत होते हैं, टाइम कम होता है, तो आप इजिली बाकी क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करिएगा, एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि एक टाइम क्वेश्चन पे अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन से आप सोल्व करने लग गए, नहीं हो रहा है, आप उस पर बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, 3 मिनट्स वेस्ट होंगी, उससे क्या होगा, डिमोटिवेशन भी आएगा कि आपने टाइम भी वेस्ट किया, क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हुआ, नहीं हो रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पे जाइएगा, जब टाइम बच जाए तो लास्ट में उसे फिर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चंस काफी होते हैं करने के लिए, टाइम ही कम होता है आपके पास। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है कि इसको मॉक टेस्ट जितने ज्यादा हो सके वो प्रैक्टिस करिएगा, और करंट अफेयर्स है लास्ट 3 मंथ्स के यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लीजिएगा, काफी सारे कंटेंट है वो फ्री मिलता है, काफी फेमस बैंकिंग चैनल्स हैं तो जहाँ पर आपको फ्री में वीडियोस मिल जाएंगे इन सब टॉपिक्स पे इजिली। फेज 1 के लिए जैसे बताया हमने कि मैक्सिमम लास्ट 3 मंथ्स का करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं बिफोर एग्जाम डेट से, एग्जाम्स के डेट से 5 दिन पहले तक का करंट अफेयर आपको कवर करना है, क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर पूछा जाता है, तो 5 दिन पहले तक का करंट अफेयर आपको हम एडवाइज करते हैं। इसके लिए आप हमारी मंथली पीडीएफ और अफेयर्स क्लाउड का जो पॉकेट पीडीएफ होता है वो पढ़ सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस देखिए लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चंस के लिए, और मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट तभी करिए जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो लेटेस्ट टाइप का वहाँ पे करंट अफेयर रहेगा, तो अभी तो पुराना करंट अफेयर है, कोई काम नहीं आएगा, यूज नहीं होगा आपके, तो इसलिए बाकी सेक्शन को है जो आप उनकी पे इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज, और रियल एग्जाम की तरह ही प्रैक्टिस करिएगा कि आपको टाइम मान लो 45 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं रीजनिंग के, तो 45 मिनट्स टाइम नोट करके अगर आप नॉर्मली मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन क्विज कर रहे हैं, ऑफलाइन टेस्ट कर रहे हैं कोई अटेम्प्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग आप 45 मिनट्स टाइम नोट करके 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा। इसी तरह क्वांट में या इंग्लिश में अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे ही प्रैक्टिस करेगा ताकि आपको रियल एग्जाम की एक्सपीरियंस हो। ये हमारे स्टार परफॉर्मर रहे हैं अभी तक, नाबार्ड ग्रेड एक बी की बात करें, सेबी की, आईआरडीए की, ये हमारे स्टार परफॉर्मर हैं जिन्होंने नाबार्ड ग्रेड बी में जो हमारे 2 स्टूडेंट्स थे, 8 वैकेंसीज में जो रैंक 2 कैंडिडेट थे, दोनों के इक्वल मार्क्स थे और दोनों का रैंक सेम था। बाकी सेबी में, आईआरडी में, नाबार्ड ग्रेड ए में भी हमारे स्टूडेंट काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। ये हमारे कोर्सेज हैं, आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, आईआरडी असिस्टेंट मैनेजर, नाबार्ड ग्रेड ए एंड बी, एफएसएसआई टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, यूपीएससी ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम। कोई भी कोर्स आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं हमारी साइट पर रजिस्टर करके आप परचेज कर सकते हैं। आपको कोई भी क्यूरी है इस एग्जाम से रिलेटेड, आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 के एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं अपने डाउट्स के लिए, या हमें मेल लिख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है मैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट 3 इयर्स के जो पेपर हैं, ईएसआई और एफएम, नेक्स्ट वीडियो में हम ईएसआई के लास्ट 3 ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं, मतलब जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं या बहुत सारे इंटरव्यू देखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू देखेंगे आप, हर जगह कुछ कुछ अलग बताया जाता है। कोई कहता है कि आप विजन आईएएस से प्रिपरेशन कर लीजिए, कोई कहता है कि आप लास्ट 6 to 12 मंथ्स का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, कोई कहता है कि आप जो यूपीएससी की वेबसाइट्स हैं उनका करंट अफेयर, उनकी गवर्नमेंट स्कीम्स पे फोकस करिएगा। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इतना सारा डेटा याद रखना, क्योंकि अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो पेपर में बहुत ही स्पेसिफिक
टॉपिक्स को टारगेट किया जाता है। करंट अफेयर भी होता है, वो फेज 1 में मैक्सिमम 2 मंथ्स का, फेज 2 में लास्ट 4 मंथ्स का। हाँ, रिपोर्ट्स हैं कि कुछ रिपोर्ट्स हैं वो पुरानी भी पूछी जाती हैं, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे जो वीडियो आएगा उसमें इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू को कैसे प्रिपेयर करना है, टॉपिक वाइज हमने एनालिसिस किया है। 3 साल का एनालिसिस होगा। आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।